Very good morning children. Welcome to the psychology classroom. कैसे हैं आप सभी बच्चों? I hope you all are studying properly and doing your best. Okay? Okay, so children, we have discussed about the chapter, the basis of human behavior. So everybody should write down the chapter name. The chapter 3rd or the chapter 3. The basis of human behavior. So basically children, this chapter we are studying about. ये chapter हम लोग पढ़ रहे हैं the basis of human behavior. We have completed the 2 chapters from our term first, which is the chapter first what is psychology and the chapter 2 methods of inquiry in psychology. Now children, this chapter I had started the basis of human behavior. So in this particular chapter also we have read about neurons. I told you about the evolutionary perspective. After the evolutionary perspective, I told you about the basis. So there were 2 bases, biological and sociocultural, where we are discussing about the biological basis of human behavior. Human behavior का biological basis क्या है? In which we have discussed about the neuron. Neuron के बारे में हमने पढ़ लिया. Now we are going to discuss about the nervous system. In the yesterday video, means previous video, last video, I had discussed with you the classifications of the nervous system. That our nervous system is divided into 2 parts: central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system is again divided into 2 parts: brain and spinal cord. And peripheral nervous system is divided into 2 parts: somatic and autonomic. So central nervous system हमने कंटिन्यू किया था और उसको डिटेल में पढ़ा था. बिफोर मूविंग टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आज मैं इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ पीएनएस से. पीएनएस which is a part of the nervous system and its full form is peripheral nervous system. Peripheral nervous system. So peripheral nervous system वो पार्ट है नर्वस सिस्टम का which is equally important like the central nervous system. Equally important है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से. सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट. ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है. द फर्स्ट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम and second part is autonomic nervous system. Somatic nervous system and autonomic nervous system. ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज अगेन डिवाइडेड इनटू सम पार्ट एंड ऑटोनॉमिक आल्सो. इनके भी क्लासिफिकेशन है. सो आप हम इसको भी चार्ट की तरह बना लें, बेटर होगा. सो आई एम गोइंग टू गिव यू द फ्लो चार्ट ऑफ दीज थिंग्स. Peripheral nervous system (PNS), which is divided into 2 parts: somatic nervous system and autonomic nervous system. Again, somatic nervous system is divided into 2 parts: spinal nerve and cranial nerve. Spinal nerve and cranial nerve. Autonomic nervous system is again divided into 2 parts, which is SNS or PNS. But here the P is denoted for something else.
SNS means sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system. And here the P is denoted for parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. So ये क्लासिफिकेशन है किसका? PNS का यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का. Please children, you take a screenshot of this one as it is a classification of this one. Okay, I just hope you all have taken the screenshot or you all have written it down in your notebook. Class 11, as you are very close to me and very important for me. Why? Because you all just have passed your class 10 and come to this classroom, which is something a big responsibility, and I know you all will fulfill that responsibility. आप सभी उस responsibility को fulfill करेंगे. Fulfillment के लिए it is must that you all should work hard. You all should complete your copies on time, and many times I told you all to watch the video. ठीक है? See whatever the things I am discussing over here, इसमें कोई भी डाउट आपको रहता है, अगर आपको कोई भी डाउट हो, if you feel any kind of doubt, so you will ask or discuss it with me classroom without hesitating कि it is something a silly question. आप ये माइंड में कहीं से भी नहीं लाएंगे कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं. So I just hope children you all will work hard. Okay. So this is done. This is done to you all, that your peripheral nervous system is divided into two parts: somatic nervous system and autonomic nervous system. Then somatic nervous system is again divided into two parts. Somatic nervous system is divided into the two parts. So sorry for जो भी disturbance है. Spinal nerve and cranial nerve. Autonomic nervous system is divided into two parts. Sympathetic nervous system, parasympathetic. This is properly visible to you all. हमारा जो पेरिफेरल है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एसएनएस एंड एएनएस. एसएनएस में टू पार्ट्स है, स्पाइनल नर्व एंड क्रेनियल नर्व. सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है जिसपे वी हैव अ कंट्रोल. Okay, it is that part of the nervous system which we have a control. But autonomic nervous system वो part होता है which are done involuntarily. Autonomic नाम में ही है autonomic. ये वो part होता है nervous system का जो autonomic होता है, automatic होता है. इसका हमारे इस पे हमारा कोई control नहीं होता. This is that part of the nervous system which happen involuntarily of the person. ठीक है? So and somatic nervous system control में होता है, voluntarily होता है. Spinal nerves, I think there were total 12 spinal nerves and 12 cranial nerve or 31 spinal nerves. So this was the ratio. Okay, there are different kind of spinal nerves also and cranial nerve. So very detail you all no need to go in that one. आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना. It is so scientific. तो उतना डिटेल में आप सभी को नहीं जाना. नाउ कमिंग टू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पार्ट. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है which deal with the emergency situation. You should write it down that sympathetic nervous system is a system which deal with the emergency situation. It is a something which is a situation of fight or flight. You can write down it in bracket, fight or flight. मतलब लड़ो या भागो.
फाइट और फ्लाइट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है जो जिसमें इमरजेंसी सिचुएशन में डील करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से आप इस नर्वस सिस्टम को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर वॉकिंग ऑन द रोड एंड सडनली अ बिग ट्रक केम फ्रॉम योर एंड एंड व्हाट हैपन, सी आप देखो योर हार्ट बीट विल इंक्रीजेस. Actually, in this part of nervous system, one diagram is given in your book, in your NCERT book. You can easily identify the sympathetic nervous system and parasympathetic. Sympathetic nervous system में सभी चीज़ें जो होती हैं वो एसिड हो जाती है, जैसे पीपल्स डायलेट हो जाना, आप सामने से ट्रक आएगी बड़ा हो, आंखें बड़ी हो जाएंगी कि बचें, ठीक है। फिर हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो जस्ट अपोजिट सिंपैथेटिक का पैरासिम्पैथेटिक होता है। जस्ट अपोजिट सिंपैथेटिक का पैरासिम्पैथेटिक होता है। सिंपैथेटिक में जहाँ सारी चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं, वहीं पैरासिम्पैथेटिक में वो चीज़ें डिक्रीज हो जाती हैं। डिक्रीज होने का मतलब इट इज समथिंग बेसिकली कमिंग बैक टू द नॉर्मल पोजिशन। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली एनर्जी रिस्टोर करता है, जो एनर्जी लॉस हुई रहती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। ड्यू टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हम एनर्जी लॉस करते हैं फाइट और फ्लाइट में, इमरजेंसी सिचुएशन में, इट अगेन कम बैक टू द नॉर्मल सिचुएशन। पैरासिम्पैथेटिक में अगेन आप एक काम पोजीशन में आ जाते हो, एक रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने वही सेम एग्जाम्पल हम लेंगे कि यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, सडनली अ बिग ट्रक केम टू योर हैंड, सो योर हार्ट बीट इंक्रीजेज, बट उसने कुछ आपको किया नहीं, जस्ट स्टॉप देयर। So after a while, your body ultimately calm down and your breathing rate, your heart rate slow down. Everything get slow down. सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? Slow down हो जाएंगी. Fine. So I hope this nervous system part is very clear to you all. Sympathetic and parasympathetic, which is both the part of the autonomic nervous system. ऑटोनॉमिक में नाम ही है, इट इज दैट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, विच आर समथिंग इनवॉलेंट्रली। अब जैसे सामने से ट्रक आया, ये आप जान के अपने हार्ट बीट को इंक्रीज नहीं कर रहे हो, अपने पीपल्स को डायलेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक आपकी बॉडी ऐसा रिस्पॉन्स करती है टुवर्ड दी पर्टिकुलर स्टिमुलस, उस स्टिमुलस के टुवर्ड। सो आई जस्ट होप आपको चिल्ड्रन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम समझ में आ गया होगा, ओके। सो आई जस्ट होप चिल्ड्रन यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. So many times I am repeating these things, so with the known that you all understand, please go through the NCERT book also while watching this video, and please note it down wherever you are having a doubts कि ये नहीं पोर्शन समझ में आ रहा या इसका क्या एक्सप्लेनेशन होगा, प्लीज नोट इट डाउन. सो आई एम गोइंग टू रब दिस विद द होप कि आपको ये क्लियर हो गया है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इज इट डन? चलिए आगे बढ़ेंगे. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आएंगे, जो हम लोग पढ़ भी रहे थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS. CNS is divided into two main parts, which is the brain and spinal cord. SC मैंने शॉर्ट में लिखा है स्पाइनल कॉर्ड को. स्पाइनल कॉर्ड is again divided into two parts, white matter and grey matter. White matter and grey matter. स्पाइनल कॉर्ड को जब आप सर्जरी करेंगे तो इट्स जस्ट लुक लाइक अ बटरफ्लाई शेप्ड. सो डिटेल्स ऑफ दिस वन आई हैड डिस्कस विद यू इन द yesterday video. Then the most important part is one more thing, that spinal cord जो ऐसा पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग भी करता है.
ज़रूरी नहीं है कि इट वर्क विद द ब्रेन ओनली। कुछ ऐसे फंक्शन भी हैं जो स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ करता है, इट डजेंट रिक्वायर द कमांड ऑफ द ब्रेन। ओके, वो अपने आप ही वो चीज़ें करता है। So this is about the spinal cord. So firstly we will discuss detail about the brain and afterward we will come to the spinal cord. So we are discussing about the brain. Brain हम लोग पढ़ रहे हैं. We all know that brain is divided into 3 parts. Okay, children, so central nervous system is divided into 2 parts, brain or spinal cord, where I had discussed with you the the spinal cord. Now brain is again divided into 3 parts, और ये मैंने आपसे कल के भी वीडियो में डिस्कस किया है, जस्ट अ काइंड ऑफ रिवीजन फॉर यू. Forebrain, midbrain and hindbrain, where I had discussed with you the hindbrain in detail and midbrain in detail, because hindbrain is divided into 3 parts, medulla oblongata, pons and cerebellum. So ये मैंने आप सभी से उसमें डिस्कस किया है, so I'm not going to repeat it again. And second part is the midbrain, which is in which RAS is there, which is responsible for the arousal, reticular activating system. So today in this video I will more focus on the forebrain. ठीक है, so let's study the forebrain. And ये जो structure है आप सभी के पास already है, so there is no need of discussion of this thing. ठीक है, so children, you all know forebrain जो होता है, it is the main part of the brain. हमारे brain के structure का maximum part forebrain है, then mid, then hind, which is attached to the spinal cord. And spinal cord का one end brain से attach and one end जो है वो tail end होता है. ठीक है, तो ये तो मैंने उसमें भी डिस्कस किया था. सो चलिए डिस्कस करते हैं forebrain को. Forebrain is the first part of the brain, which is divided into 4 main parts. The first is thalamus, the second is hypothalamus, third is limbic system. First is thalamus, second is hypothalamus, third is limbic system and last is cerebrum. सेरिब्रम को हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, आप इसे सेरिब्रम बोलो और इट इज नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स. ठीक है, सेरिब्रम या सेरिब्रल कॉर्टेक्स. लिम्बिक सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स अगेन, हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला. सी डिवीजन तो आपको याद होना ही चाहिए बेटा, साथ ही साथ आपको इनके फंक्शंस भी याद होने चाहिए. What is their function? इनके फंक्शन क्या है? ठीक है, डिविजन्स. आई होप द बोर्ड इज प्रॉपरली विजिबल टू यू एंड यू विल ऑल राइटिंग दीज थिंग्स इन योर कॉपीज. सो थैलेमस, forebrain डिवाइडेड है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, सेरिब्रम या सेरिब्रल कॉर्टेक्स. सो लिम्बिक सिस्टम के बारे में पहले डिस्कस कर ले रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको जस्ट फ्रंट में इन सारी चीज़ों को दिया हुआ है. तो लिम्बिक सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला. हिप्पोकैम्पस वो पार्ट है, हिप्पोकैम्पस इज बेसिकली रिलेटेड टू द मेमोरी. जो मेमोरी होती है ना आपकी, जिसमें आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हो, तो दैट पार्ट इज नोन. जो ब्रेन का आपसे पूछा जा सकता है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेमोरी. मेमोरी के लिए यानी बहुत सारी चीज़ें आप इनकोड करते हो, स्टोर करते रखते हो. ठीक है, तो उसके लिए कौन सा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है? अगर उसमें कहीं से कोई भी डैमेज हो जाए तो आपकी मेमोरी पे उसका असर आता है. सो ब्रेन, फोरब्रेन का डिवीजन आपको समझ में आ गया. So I'm talking about the hippocampus. Hippocampus is that part of the brain which is related to which is responsible for the long term memory. Hippocampus जो है ये long term memory के लिए responsible है. अगर इसमें कहीं से भी कोई डैमेज होता है तो LTM पे इफेक्ट आता है, यानी ये वो पार्ट होती है मेमोरी की where the information is retained for a longer period of time. तो क्या होता है कि इसमें डैमेज होने की वजह से आप चीज़ों को बहुत लंबे समय तक याद नहीं रख सकते हो.
ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी भी इम्पेयरमेंट होने लगती है, जैसे यू हैव माइट हैव सीन द फिल्म रजनी। रजनी तो बहुत फेमस हुई थी, आई थिंक सभी कोई जानता है, इट्स अ वेरी कॉमन बॉलीवुड मूवी। सो उसमें वही था, दैट पर्सन इज हैविंग अ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, उसको याद नहीं रहता था, बिकॉज एसटीएम की जो कैपेसिटी होती है वो लेस देन 30 सेकेंड होती है, 30 सेकेंड या 30 सेकेंड से भी कम होती है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई वो अगर कहीं से भी इस पार्ट में अगर डैमेज है या कुछ भी गड़बड़ है इसमें, क्या सम काइंड ऑफ इम्पेयरमेंट, तो आप वो इंफॉर्मेशन को इनकोड तो कर लोगे पर बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर पाओगे, वो आपकी मेमोरी से फॉरगेटिंग हो जाएगी और डिके हो जाएगी। ठीक है, यू फॉरगॉट इट, उसमें यही होता था कि वो भूल जाता था, एंड दैट इज वाई ही राइट इट ऑन हिज बॉडी, होल बॉडी, एवरीवेयर द थिंग। ठीक है। सेकेंड पार्ट लिम्बिक सिस्टम का एमिगडाला है, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। ब्रेन का जो लिम्बिक सिस्टम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि इसका 8 पार्ट मेमोरी से डील करता है और 8 पार्ट इमोशन से। एमिगडाला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमोशन, इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हम इमोशनल बिहेवियर करते हैं, वी क्राई, वी शो द एंगर, वी शो द हैप्पीनेस, वी शो द सैडनेस, so we are bounded with surrounded with a different kind of emotion. So which part of the brain is responsible? So it is amygdala. So keep it in mind, children. Amygdala is that part of the brain which is responsible for the emotion. So LTM and emotion. Okay, so this is clear to you all. You all will note it down, hippocampus and amygdala. Understood? So limbic system हमने clear कर लिया. Now coming to the thalamus and hypothalamus. Thalamus is considered to be the vital center of the brain. ठीक है, बहुत ही important center माना जाता है ये brain का, and really it's play a very important role. Okay. वाइटल सेंटर, थैलेमस का रोल क्या होता है? थैलेमस जो होता है, एक तो ब्रीथिंग में, बेसिकली ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस जो है ब्रेन में, इनका जो लोकेशन है बहुत ही आसपास है, वेरी नियर नेबर थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। एंड हाइपोथैलेमस इज जस्ट लुक लाइक so sorry, not hypothalamus or thalamus, somebody is there whose structures look like the H shape की तरह दिखता है। ठीक है, बहुत छोटा सा होता है, H shape की तरह दिखता है, it just look like the egg का जो शेप होता है वो ओवल होता है। so ये ओवल शेप में ये होता है, बहुत छोटा सा टाइनिंग सा होता है। फाइन, ओके, आगे बढ़ते हैं। सो हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनिंग द इंटरनल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे सेरेबेलम रिस्पॉन्सिबल है मेंटेनिंग द एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम, यानी मोटर कोऑर्डिनेशन और बाहर से आपकी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। सिमिलरली हाइपोथैलेमस जो है आपकी बॉडी के इंटरनल इक्विलिब्रियम यानी इंटरनल बैलेंस को मेजर करता है। So we discuss about thalamus, hypothalamus and limbic system. Now we are focused on the cerebrum, the big part of the brain, जिसे कहा जाता है big brain. Cerebrum क्या है? एक बहुत बड़ा brain है, मतलब maximum portion of the brain is covered with the cerebrum. Fine? Okay. Okay. So children, now we have to focus on the सेरिब्रम। हमें किस पे फोकस करना है? सेरिब्रम को। सेरिब्रम विच इज द बिग ब्रेन। सेरिब्रम इज ऑल्सो नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो नाउ आई एम गोइंग टू रब इट विद द होप आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे। लाइक एमिगडाला इज इम्पॉर्टेंट, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इमोशन, एंड हिप्पोकैम्पस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एलटीएम। सो आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड एंड वी नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेरिब्रम। सेरिब्रम को हम लोग डिस्कस करेंगे। सेरिब्रम इसलिए बिग ब्रेन कहा जाता है क्योंकि ये काफी पोर्शन ब्रेन का कवर करता है। सेरिब्रम को सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी बोला जाता है। सेरिब्रम
It is also known as cerebral cortex. It is also known as cerebral cortex. और इसका नाम है, it is also known as big brain. Here in cerebral cortex you will discuss about the cerebral hemisphere. ठीक है, cerebral hemisphere. Cerebral hemisphere, cerebral cortex में आप cerebral hemisphere पढ़ेंगे. This cerebral hemisphere is divided into two parts. And what is the part? Left hemisphere and the right hemisphere. इसके बारे में बेटा आपने 10th में भी पढ़ा होगा. इट इज़ नॉट समथिंग लाइक बहुत न्यू है आपके लिए, आपने इन चीज़ों को 10th में भी पढ़ा होगा. सो हमारा जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, जब आप ब्रेन की स्कल को रिमूव करेंगे, आप जो ब्रेन को देखेंगे, जैसे ब्रेन का जो शेप है या स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह है? वॉलनट की तरह है. मैंने बताया ना वॉलनट, तो वॉलनट में आप देखते हो वॉलनट कैसा होता है? रिंकल्ड सरफेस होता है ना. तो उसमें हेमिस्फीयर होते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक राइट हेमिस्फीयर. सो दिस इज लाइक द डायग्राम. आप देखते हो ऐसे होता है. अगर आप ब्रेन को अबव से देखो तो इस तरीके से कुछ ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखता है. एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक राइट हेमिस्फीयर. इन दोनों हेमिस्फीयर को जो ये कनेक्ट करता है, इसको भी हम बोलते हैं द केमिकल द विच कनेक्ट दीज टू हेमिस्फीयर. जैसे वॉलनट में भी देखते हो कि एक लाइन ड्रॉ होती है ना बिटवीन द टू थिंग्स, तो एक लाइन जो उसे ज्वाइन किए रहती है. तो ये दोनों हेमिस्फीयर को जो ज्वाइन किया रहता है, ये जो बीच का होता है, उसे हम लोग कहते हैं, आपने पढ़ा है बट मे बी यू डोंट रिकॉल. सो इट इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम. इट इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम. इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, जो दो हेमिस्फीयर को ज्वाइन करके रखता है. कॉर्पस कैलोसम. फाइन. नाउ ये जो दोनों ही हेमिस्फीयर है, दोनों के डिफरेंट फंक्शन होते हैं. लेफ्ट हेमिस्फीयर का एक अलग फंक्शन होता है, राइट हेमिस्फीयर का अलग फंक्शन होता है. जैसे लेफ्ट हेमिस्फीयर यानी ये हेमिस्फीयर जो है, अच्छा ये दोनों ही एडजॉइनिंग एक्स जैसे होता है, दोनों ही एक डिफरेंट एरिया को कवर करते हैं. ठीक है, जैसे कि आप ऐसे डायग्रामेटिक में आप कह सकते हो वाइस वर्सा वर्क करता है. अब जैसे लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो राइट पोर्शन ऑफ द बॉडी को गवर्न करता है, एंड राइट हेमिस्फीयर जो है वो लेफ्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी को गवर्न करता है. सो दैट इज वाई इट इज नोन एज कि लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होता है वो ड्राइंग, पेंटिंग, स्किल, लिटरेचर, आर्ट एंड क्राफ्ट, इनसे ज़्यादा रिलेटेड होता है. और राइट हेमिस्फीयर जो है वो ब्रेनी होता है. तो बेसिकली आप कह सकते हो कि राइट हेमिस्फीयर ब्रेनी है और लेफ्ट हेमिस्फीयर आर्टिस्टिक है. ठीक है, सो आई डिस्कस विद यू द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, about the left hemisphere, right hemisphere, how they are connected, corpus callosum. Now one thing you all have to study about the cerebrum is the lobes. So आपका जो ये cerebrum है वो 4 lobes में divided है. It is divided into 4 lobes. आपने ये 10th में भी पढ़ा होगा इन 4 lobes को. Frontal lobe, temporal lobe, parietal lobe and the occipital lobe. ठीक है, सो ये अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. सो आई एम गोइंग टू रख द बोर्ड. ओके, सो चिल्ड्रन लेट्स डिस्कस अबाउट द लोब्स. तो आपके लिए मैं एक ब्रेन का एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, जैसे इस तरीके से ब्रेन का स्ट्रक्चर है. ठीक है, एक रफली डायग्राम है. मैक्सिमम ये जो आगे का पोर्शन होता है दिस इज योर फ्रंटल लोब. ठीक है, ये जो पोर्शन है विच इज नियर टू द ईयर्स, ईयर्स के पास जो आपका ये पोर्शन है ये आपका होता है टेम्पोरल लोब. ये दोनों साइड होता है. ठीक है, इट इज इन द बोथ द साइड. बैक में जो पोर्शन होता है ये आपका होता है ऑक्सीपिटल लोब, और मिड में जो होता है वो होता है पैराइटल लोब, क्योंकि इसका काम होता है सभी में कनेक्शन बना के रखना. तो जो मैं यहाँ से बता रही हूँ प्रैक्टिकली, जो ये पोर्शन है आपका ये फ्रंटल लोब है. पैराइटल लोब
मिड में होता है, टेम्पोरल लोब ये आपके यहाँ पे होता है जस्ट क्लोज टू द ईयर्स, एंड ऑक्सीपिटल लोब एट द बैक होता है। नाउ इन सभी लोब्स के डिफरेंट फंक्शंस भी हैं, ठीक है। सो नाउ about the lobes in detail I will discuss with you in the next video about the lobes as well as about the spinal cord. So with this one our nervous system part topic will be completed. Fine. So thank you so much for carefully observing this video, children. Thank you.